Good morning students, this is Anil Soni, and in the last class we have started the exercise 2.1. Today I will continue the same exercise where our 3 question is completed. The question number 4 is cos inverse 63 upon 65 plus 2 tan inverse 1 upon 5 equals to sin inverse 3 upon 5. Then we prove this question, the left hand side is equals to the right hand side. So taking left hand side, the left hand side is cos inverse 63 upon 65 plus 2 tan inverse 1 upon 5. Then we firstly apply the formula 2 tan inverse x. In last lecture मैंने आपको बताया था कि 2 tan inverse x के भी 3 फॉर्मूले होते हैं. फर्स्ट फॉर्मूला sin इनवर्स वाला, सेकंड cos इनवर्स वाला एंड थर्ड वन इज tan इनवर्स वाला. हमने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किया था उसमें हमारा क्वेश्चन tan इनवर्स में था, तो यहाँ हमने 2 tan इनवर्स x का भी tan इनवर्स वाला ही फॉर्मूला अप्लाई किया था. तो अब आप मुझे यहाँ बताइए कि यहाँ मैं 2 tan इनवर्स x का sin इनवर्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा. sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. cos इनवर्स वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या tan इनवर्स वाला tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो आप देखिए कि इसके साथ वाली टर्म किसमें है. इसके साथ वाली टर्म sin इनवर्स में होती है. देन वी अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ sin इनवर्स. cos इनवर्स में है, देन वी अप्लाई द cos इनवर्स. एंड इससे लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें इसके साथ वाली टर्म tan इनवर्स की फॉर्म में थी, इसलिए हमने tan इनवर्स वाला फॉर्मूला अप्लाई किया था. तो यहाँ इसके साथ वाली टर्म cos इनवर्स में है, इसलिए हम 2 tan इनवर्स x का भी cos इनवर्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो क्या फॉर्मूला है, मैं यहाँ लिख देता हूँ. 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 minus x square upon 1 plus x square. This is the formula of 2 tan inverse x is in the form of cos inverse. So 2 tan inverse x where the value of x is 1 upon 5. तो यहाँ मुझे x को किससे रिप्लेस करना है, 1 upon 5 से. then cos inverse 63 upon 65 plus cos inverse 1 minus x square. The value of x is 1 upon 5. 1 plus x square. Okay. 2 tan inverse x के 3 फॉर्मूले हैं. sin inverse 2x upon 1 plus x square, cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square and tan inverse 2x upon 1 minus x square. कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन की अदर टर्म पे, कि अदर टर्म sin इनवर्स में है, cos इनवर्स में है और tan इनवर्स में. ओके, देन वी सॉल्व इट. cos इनवर्स 63 upon 65 plus cos इनवर्स 1 minus 1 square of 1 upon 5 is 1 upon 25. 1 plus 1 upon 25. cos inverse 63 upon 65 plus cos inverse 25 LCM 25 minus में 24 upon 25 upon 25 plus 1 26 upon 25. ओके, 25 से 25 कट. cos इनवर्स 63 upon 65 plus cos इनवर्स 24 upon 26. 24 and 26 is also cancelled by 2. cos इनवर्स 63 upon 65 plus cos इनवर्स 12 upon 32 से 24 12 times कट होगा and 26 is 30 times. And then our question will be cos inverse 63 upon 65. इसमें कुछ चेंज नहीं किया है, as it is चल रहा था, plus cos inverse 12 upon 30. Then we apply the formula
cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किया था उसमें 2 tan इनवर्स x का हमने tan इनवर्स वाला फार्मूला अप्लाई किया था। आफ्टर देन वी अप्लाइंग द फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्योंकि दोनों भी टर्म tan इनवर्स में थी, यहाँ दोनों भी टर्म cos इनवर्स में, देन वी अप्लाई द फार्मूला cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, एंड दिस फार्मूला इज फॉर्म्ड बाय द cos a प्लस b, cos a cos b माइनस sin a sin b, उसी से इनवर्स वाले सभी फार्मूले फॉर्म हुए। व्हाट इज द फार्मूला? cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल्स टू cos इनवर्स xy minus root 1 minus x square other root 1 minus y square. This is the formula of cos inverse x plus cos inverse y. Cos inverse cos a cos b minus sin a sin b, xy minus root 1 minus x square root 1 minus y square. Comparison कीजिए, the value of x is 63 upon 65 and the value of y is 12 upon 30. तो x को मुझे 63 upon 65 से रिप्लेस करना है, the value of y is replaced by the 12 upon 30. Okay, so putting the value cos inverse x into y, 63 upon 65 multiplied 12 upon 30 minus root 1 minus 63 upon 65 का square and the other root 1 minus 12 upon 13 का square. ओके, cos इनवर्स देखिए कुछ कट हो रहा, 13 से 63 कट नहीं हो रहा, 12 से 65 भी कट नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई कर लें, 12 3 is 36, 3 12 6 is 72 and 3 75, 65 into 13, 13 5 is 65, 6 13 6 is 78 and 6 84. Okay, 1 minus स्क्वायर ऑफ 63, 63 का स्क्वायर और 65 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर 4225 एंड द स्क्वायर ऑफ 63 इज 3969. Okay, other rule multiplication of 1 minus 144 upon 169. Okay, then we putting the value of x is 63 upon 65 and the value of y is 12 upon 13. After that we solving this, cos inverse seven five six upon 845 minus LCM is 4225 and 4225 minus 3969 and the bracket LCM is 169 minus 144 upon 169. cos inverse क्वेश्चन में बस आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए और तो फिर कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करनी आपको आती ही है। माइनस कीजिए 4225 माइनस 3969, 15 माइनस 9 6, ओके, 11 माइनस 6 5, 41 माइनस 39 256 एंड 25 अपॉन 169. Okay, cos inverse 756 upon 845 minus the root of 256 is 16 and the root of 4225 is 65 because square of 65 is 4225. Multiply 5 upon 30. cos inverse 756 upon 845 minus 65 is 80. 65 को 13 से मल्टीप्लाई किया था वही 845 आया था। देन cos inverse
LCM is 845, 756 minus 80. Then cos inverse 845 minus कीजिए कितना आएगा 6 minus 0 6 75 minus 8 67 ओके 676 6 8 7 15 ओके 676 अपॉन 845। अब देखिए नंबर किसी से कट हो रहा है तो इसको रफ वर्क में हम कट करके कैंसिल करके इसको सिंपलीफाई फॉर्म में लिख देते हैं, हम राइट कर देंगे 676 845 3 से कट हो रहा 13 से देखिए 13 से ये कट हो रहा है 13 से ये भी कट रहा है 13 से कट कर देते हैं इस नंबर को 13 5 जा 65 13 2 जा 26 13 6 जा 78 ओके 36 जा 78 6 13 5 जा 65। अब देखिए नंबर 13 से फिर कट हो रहा है 13 4 जा 52 एंड 13 5 जा 65 देन 4 upon 5 cos inverse 4 upon 5 so our answer is cos inverse 4 upon 5 बट अब हम इसका राइट हैंड साइड देखते हैं बट हमारा आंसर sin इनवर्स 3 upon 5 है cos इनवर्स 4 upon 5 नहीं है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड cos इनवर्स 63 upon 65 plus 2 tan inverse 1 upon 5 firstly we will apply the formula 2 tan inverse x but 2 tan inverse x की हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं तो कौन से फॉर्मूला अप्लाई करना है इसकी अदर टर्म को देख के पता चलेगा। अदर टर्म cos इनवर्स में देन वी अप्लाई द फॉर्मूला cos इनवर्स 1 minus x square upon 1 plus x square then the value of x is 1 upon 5 सॉल्व करने के बाद अपने पास क्वेश्चन बना cos इनवर्स 63 upon 65 plus cos इनवर्स 12 upon 13 then we apply the formula cos inverse x plus cos inverse y equals to cos inverse xy minus root 1 minus x square other root 1 minus y square then the value of x is 63 upon 65 and the value of y is 12 upon 13 after then solving then we get the answer is in the form of cos inverse क्योंकि cos inverse वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है तो हमारा आंसर भी cos inverse में है बट हमें आंसर चाहिए sin inverse में तो क्या करें cos inverse 4 upon 5 को हम मुझे sin inverse की फॉर्म में चेंज करना है। तो किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को अपन किसी भी अदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में कैसे चेंज कर सकते हैं तो अब मैं आपको ये रूल बता रहा हूँ तो इस रूल को आप थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि इनवर्स को उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ही चेंज करके हम उसको अदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। अब देखिए मुझे cos इनवर्स को किस में चेंज करना है sin इनवर्स में ओके लेट cos इनवर्स 4 upon 5 equals to theta cos inverse उधर जाएगा then it change into the cos theta equals to 4 upon 5 and we know that the cos theta is the ratio of base upon hypotenuse equals to 4 upon 5 then we form the right angle triangle this is right angle this is acute angle theta theta के रेस्पेक्ट में बेस की वैल्यू कितनी है 4 हाइपोटेन्यूज कितना है 5 देन अपना परपेंडिकुलर कितना आएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 बेस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 25 माइनस 16 9 एंड 9 का रूट 3 ठीक है वो हमें शोनी करना है ठीक है 5 25 minus 16 equals to 9 and the root of 9 is 3 then the perpendicular is 3 अब मुझे cos inverse को sin inverse में चेंज करना है then we apply the value of then we find the value of sin theta जब मुझे sin inverse में चेंज करना है तो मैं sin theta की वैल्यू फाइंड करूंगा sin theta equals to p upon h sin theta equals to p upon h the value of p is 3 and the value of h is 5 then theta equals to sin inverse 3 upon 5 and theta हमने किसको assume किया था cos inverse 4 upon 5 is equals to theta then theta की वैल्यू हम पुट कर दें so cos inverse 4 upon 5 equals to sin inverse 3 upon 5 hence proved left so LHS equals to RHS or hence proved cos inverse 4 upon 5 भी किसके इक्वल होता है sin inverse 3 upon 5 की तो then we change the cos inverse 4 upon 5 into the sin inverse 3 upon 5 okay not it the next question is question number 5
sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3 equals to 15. Okay, in this question the left hand side is proved is equals to the right hand side. So taking left hand side, the left hand side is sec square tan inverse 2 plus cosec square cot inverse 3. Okay, then we change the tan inverse into the sec inverse because आपको मैंने बताया था कि sec inverse के साथ हमेशा sec आना चाहिए क्योंकि दोनों एक दूसरे की इनवर्स प्रोसेस होती है, देन तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। जैसे मैंने बोला था sec इनवर्स एंड sec थीटा, देन sec से sec इनवर्स कट हो जाएगा बिकॉज दोनों एक दूसरे के अपोजिट रेसिप्रोकल या इनवर्स प्रोसेस है जो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ थीटा। सिमिलरली sec then sec inverse x, ओके sec से sec inverse कट हो जाएगा, then we get the value of x क्योंकि दोनों एक दूसरे की इनवर्स प्रोसेस होने की वजह से दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, then we get the value of x and get the value of थीटा। तो यहाँ आपको ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ बाहर sec इनवर्स है तो अंदर भी sec में चेंज करना है, या बाहर sec है तो हमें ब्रैकेट को भी sec इनवर्स में ही चेंज करना है। तो अभी मैंने आपको प्रोसेस बताया कि लास्ट क्वेश्चन में cos इनवर्स को sin इनवर्स में कैसे चेंज किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज करके। तो सिमिलरली यहाँ भी मुझे tan इनवर्स को sec इनवर्स में चेंज करना है, sec से sec इनवर्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। और यहाँ cosec स्क्वायर है मींस cosec है तो ब्रैकेट में भी cot इनवर्स को cosec इनवर्स में ही चेंज करना है जिससे cosec एंड cosec इनवर्स एक दूसरे के इफेक्ट को कट कर देंगे। ओके, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रहा है उसी के साथ उसी का ही इनवर्स आना चाहिए। cos है तो cos इनवर्स आना चाहिए, sec है तो sec इनवर्स आना चाहिए, cot है तो cot इनवर्स आना चाहिए, cosec है तो cosec इनवर्स आना चाहिए, sec है तो sec इनवर्स आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो देखिए tan इनवर्स 2 को अभी मैंने किया था cos इनवर्स 4/5 को थीटा जूम किया था, लेट tan इनवर्स 2 इक्वल्स टू अल्फा एंड इसको भी चेंज करना है cosec इनवर्स में एंड cot इनवर्स 3 इक्वल्स टू बीटा। ओके, लेट tan इनवर्स 2 को थीटा भी अज्यूम किया जा सकता है, लेट tan इनवर्स 2 इक्वल्स टू थीटा एंड cot इनवर्स 3 इक्वल्स टू 5, बट यहाँ मैंने अल्फा एंड बीटा अज्यूम किया, एज यू लाइक आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। देन tan इनवर्स का ट्रांसपोज किया जाएगा tan अल्फा इक्वल्स टू 2, ओके tan थीटा और tan अल्फा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, then 2/1, then we found the right angle triangle, alpha perpendicular is 2, base is 1। तो बताइए हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, इसको मैं साइड में शो कर देता हूँ। This is acute angle alpha, this is right angle, perpendicular is 2, base is 1, then hypotenuse square equals to base square plus perpendicular square, square of 1, 1 square of 2 is 4, 4 plus 1 5, then the root of 5 is root 5। ओके, अब मुझे tan अल्फा को किस में चेंज करना है, sec अल्फा में, क्योंकि tan इनवर्स को sec इनवर्स में चेंज करना है तो tan अल्फा से मुझे sec अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी होगी। देन sec अल्फा, sec alpha is the ratio of hypotenuse upon base, okay, sec alpha, the hypotenuse is root 5 and base is 1, root 5 upon 1 root 5, then alpha equals to sec inverse root 5, okay, then alpha equals to sec inverse root 5 and the value of alpha is tan inverse 2, then we putting the value of alpha, alpha किसको assume किया था tan inverse 2 को, so tan inverse 2 is equals to the sec inverse root 5, then we write tan inverse 2 is equals to the sec inverse root 5, so मैं इसको sec inverse root 5 लिखूंगा, sec से sec inverse इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे and the square of root 5, क्योंकि स्क्वायर then the square of root 5 is 5। सिमिलरली cot inverse 3 को सॉल्व करते हैं,
cot beta equals to 3. Cot is the ratio of base upon perpendicular, 3 upon 1. Okay, then we form the right angle triangle. This is right angle and this is acute angle beta, and beta के रेस्पेक्ट में बेस 3 है, परपेंडिकुलर 1 है, देन हाइपोटेन्यूस इज √10. But we change into the cosec inverse, then we find the value of cosec beta. Cosec beta is the hypotenuse upon perpendicular. Hypotenuse is √10 and perpendicular is 1. Then beta equals to cosec inverse √10 and the value of beta is cot inverse 3. Cot inverse 3 को beta assume किया, तो then we put in the value of beta. Cot inverse 3 is equals to the cosec inverse √10. This is equation first and this is equation 2. Then we putting the value from equation first and second in this question. Okay, putting the values. क्या था अपना क्वेश्चन? sec square tan inverse 2 and the value of tan inverse 2 is sec inverse √5 plus cosec square cot inverse 3 and the value of cot inverse 3 is cosec inverse √10. Then sec square sec inverse √5. Okay, cosec square cosec inverse √10. Okay, sec से sec inverse इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, then the √5 and the square of √5 because यहाँ स्क्वायर है, ध्यान रखिए. जैसे sec square theta it is behave as a theta, sec square theta means square of sec theta, sec square theta means square of sec theta. then sec से sec inverse कट हो जाएगा, then √5 और √5 का स्क्वायर होगा, मींस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ. This is the value of theta sec theta and the square sec square theta means sec theta का स्क्वायर. sec से sec inverse एक दूसरे के इफेक्ट को कट कर देंगे, then the remaining value is √5 and the square of √5. then cosec से cosec inverse इफेक्ट को कट करेगा, then √10 and the square apply, then square of √10, then the square of √5 is 5 and the square of √10 is 10. Then we get the value of 15. So LHS equals to RHS. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि बाहर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो अंदर हमें उसी का इन्वर्स बनाना है, या बाहर जो इन्वर्स हो उसी का हमें ट्रिग्नोमेट्रिक बनाना है, क्योंकि दोनों इन्वर्स प्रोसेस होने की वजह से वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे. ओके, नॉट. So question number 6 is prove that 2 tan inverse x equals to sin inverse 2x upon 1 plus x square equals to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. This is our sixth question और sixth question में ये हमारा फॉर्मूला है जो हमें प्रूफ करना है. 2 tan inverse x का फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? sin inverse 2x upon 1 plus x square. 2 tan inverse x का सेकंड फॉर्मूला है cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. एंड 2 tan inverse x का थर्ड फॉर्मूला और है tan inverse 2x upon 1 minus x square. तो यहाँ में इस फॉर्मूले को प्रूफ करना मींस यहाँ मुझे लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ नहीं करना, यहाँ मुझे राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है. sin इनवर्स 2x upon 1 plus x square भी फॉर्मूला फॉर्म कैसे हुआ वो मैं आपको यहाँ क्लियर करूंगा. तो इस फॉर्मूले को इसके इक्वल प्रूफ करना है. सिमिलरली cos इनवर्स 1 minus x square upon 1 plus x square को भी 2 tan इनवर्स x के इक्वल प्रूफ करना है. देन दिस इज द राइट हैंड साइड एंड दिस इज आल्सो राइट हैंड साइड, पर इन दोनों राइट हैंड साइड को हमें लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है. सो टेकिंग राइट हैंड साइड sin इनवर्स 2x upon 1 plus
एक्स स्क्वायर। अब आप मुझे देख के बताइए ध्यान से, यहाँ मैं x की वैल्यू कितनी पुट करूं, देन ये कोई साइन इनवर्स है तो साइन का ही फॉर्मूला फॉर्म होना चाहिए। ओके, यहाँ मुझे x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि अंदर ब्रैकेट में जो फॉर्मूला फॉर्म हो वो साइन का ही फॉर्मूला फॉर्म होना चाहिए। रीजन जो मैंने आपको पहले ही बताया, बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर उसी का इनवर्स होना चाहिए, में साइन इनवर्स का इनवर्स साइन होना चाहिए। बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन ही बने। कोई ऐसी x की वैल्यू पुट कीजिए जिससे ये साइन का ही कोई फॉर्मूला बने। तो आपको फॉर्मूला याद है, sin 2 थीटा के फॉर्मूला था, फर्स्ट था 2 sin थीटा cos थीटा एंड सेकंड वन इज 2 tan थीटा अपॉन 1 plus tan स्क्वायर थीटा। देन वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू tan थीटा, देन थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x। तो एक बात ध्यान रखिए, जो हम अज्यूम करते हैं वो स्टार्टिंग में पुट होता है, उससे जो थीटा की वैल्यू फाइंड होकर आती है आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन, मतलब पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद सबसे लास्ट में पुट होती है। ओके, देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू tan थीटा एंड एट लास्ट द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू द tan इनवर्स x। देन वी पुटिंग द वैल्यू, देन आवर क्वेश्चन sin इनवर्स द वैल्यू ऑफ x इज tan थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 plus tan square theta, and 2 tan theta upon 1 plus tan square theta is the formula of sin 2 theta. Okay, sin 2 theta 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. Okay, sin से sin inverse effect कट हो जाएगा, then we get 2 theta and the value of theta after that question solve हो गया, and after solving the question then we putting the value of theta and the value of theta is tan inverse x। तो देखिए अपना क्वेश्चन प्रूफ हो गया नहीं हो गया, sin इनवर्स 2x upon 1 plus x square में x की वैल्यू tan थीटा पुट की, then this is the formula of the sin 2 theta 2 tan theta upon 1 plus tan square plus sin से sin इनवर्स cancel, then 2 theta and the value of theta is 2 tan inverse x। so RHS equals to LHS और hence proof। सिमिलरली सेकंड राइट हैंड साइड में मुझे प्रूफ करना है, और वैसे तो आंसर को भी देख के पता लग रहा है कि यहाँ मुझे x की वैल्यू tan थीटा पुट करनी है, देन थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x तभी आएगी जब मैं x की वैल्यू tan थीटा पुट करूंगा। cos इनवर्स 1 minus x square upon 1 plus x square, then we putting the formula, then we putting the value of x, let x equals to tan theta, because cos 2 theta का फॉर्मूला tan की फॉर्म में था, 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta is the formula of cos 2 theta, then theta equals to at last में पुट होती है वैल्यू tan inverse x, then cos inverse 1 minus tan square theta, the value of x is tan theta, 1 plus tan square theta। और वैसे भी इस फॉर्म को देख के पता चल जाएगा कि x की वैल्यू कितनी पुट करनी है। 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta is the formula of cos 2 theta, then cos से cos inverse cut, then 2 theta and the value of theta is tan inverse x। so RHS equals to LHS। okay, noted।